गोरैया in Hindi. ठीक है. So now we are going to learn the types of nouns. संख्या के कितने भेद होते हैं? 3. संख्या के 3 भेद होते हैं. उसमें first one is व्यक्तिवाचक संख्या. संख्या यानी proper noun. noun. जातिवाचक संज्ञा means common noun. Very good. And भाववाचक संख्या यानी abstract noun. Very good. We have already learned this in the last class, है ना? So व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या and भाववाचक संख्या. Like this, संख्या, the noun has 3 derivations. यानी there are 3 types of nouns. ठीक है, संख्या के 3 भेद होते हैं. उसमें first one is व्यक्तिवाचक संख्या. ठीक है, यानी proper noun. In English, we used to write proper noun begin with a capital letter. है ना? Here, nothing special like that. Here, what is व्यक्तिवाचक संख्या? जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संख्या कहलाते हैं. ठीक है, when we talk about a special या unique person, place and thing. ठीक है, जैसे कि अमल. Amal is your name meant only for you, isn't it? Yes, ma'am. So सिर्फ आपके लिए दिया है, किसी और के लिए नहीं है. जैसे कि अमिताभ बच्चन is a superstar, an actor, superstar actor in Bollywood, है ना? That is name meant only for the same. Sachin Tendulkar also, that is a name meant only for, उन्हीं को दिया गया, उन्हीं का नाम है. जैसे कि ताजमहल, very unique and a special name, isn't it? Yes. And Delhi is a name of a place only for that particular place, isn't it? Delhi means Delhi, right? Delhi. Yes, Baba. Very good. ठीक है. Okay. So Amitabh Bachchan, Sachin Tendulkar and this Taj Mahal is किसी खास माने व्यक्ति या इमारत माने बिल्डिंग के नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है. ठीक है. These all names of special person या special buildings. That is what it is called as व्यक्तिवाचक संख्या. Clear? Yes. So do one thing, Baba. नीचे लिखे वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संख्या शब्द छांट कर अपने पुस्तक में लिखो. Now you need not to write in your book. Just identify व्यक्तिवाचक संख्या from the given sentence. Okay, ma'am. Identify कर लो बच्चों. कृष्ण जी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे. कृष्ण जी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं. ठीक है. इसमें व्यक्तिवाचक संख्या कृष्ण. कृष्ण व्यक्तिवाचक संख्या. ठीक है. नेक्स्ट वन. आसमान में चांद निकलता है. चांद. वेरी गुड. मैं इंडिया गेट गई थी. इंडिया गेट. वेरी गुड. Oh no, India Gate is one word, right? Yes, Papa. This is. So this one is clear. I can move to the next topic, है ना? So जातिवाचक संख्या. Clear. The next one is it is visible properly, the PPT? Yes, yes. Next one is जातिवाचक संख्या. There is slight change from व्यक्तिवाचक संख्या. व्यक्तिवाचक संख्या is the name of a special person या unique things, isn't it? And जातिवाचक संख्या माने it's common noun in English which the word represent a group. ठीक है. जैसे कि for example it is given kawa is given here, है ना बच्चा? Kawa, a crow. There are many crow, है ना? It represent the name represent a group. बच्चा, child.
सारे के सारे छोटे बच्चों को बच्चे कहते हैं. We used to call them as child. Maze, Table. table. Table is a common word. It represents a group. If you say column, also the same here. ठीक है. Yeah. If you take a brand of a particular column, that is brand name of a व्यक्तिवाचक. Only if we say only pen, that is जातिवाचक संज्ञा because it's common noun. जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध कराता है. when हम पूरे जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द एक पूरे जाति का बोध कराता है, that is called जातिवाचक संज्ञा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पक्षी, किताब, बच्चा, नदी. ठीक है बच्चा. So particular name या special names comes under व्यक्तिवाचक संख्या, and the word that represent a group comes under जातिवाचक संख्या. Clear? Yes, ma'am. समझ में आया ना बच्चा? Yes, ma'am. Now नीचे लिखे वाक्यों में से जातिवाचक संख्या शब्द छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखो. So it's your turn now. Yes, ma'am. बच्चे बहुत प्यारे होते हैं. बच्चे. Very good. पक्षी दाना गाते हैं. पक्षी. पक्षी दाना खाते हैं. ठीक है. खाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. नदियाँ बहती है. नदियाँ बहती है. बहती है. ठीक है. नदियाँ बहती है. वेरी गुड. गॉट अ स्टार. ठीक है. ओके. भाववाचक संख्या. ठीक है. नेक्स्ट वन. सो दैट वन इज आल्सो क्लियर. सो वी आर मूविंग इनटू भाववाचक संख्या यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, क्वालिटी, भाव, इमोशन, दशा, स्टेट. ठीक है. जैसे कि sick, it's a state, isn't it? बचपन, childhood, it's a state. खुशी, दुखी, all these are खुशी. It's all emotions. ठीक है. जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु के गुण, भाव या दशा का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संख्या कहते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, बचपन सबसे अच्छा समय है. बचपन माने चाइल्डहुड. चाइल्डहुड इज अ स्टेट, isn't it? एक दशा है, स्थिति है. वो बीमारी से थक आ चुका है. बीमारी, सिकनेस. ओके. इस पहाड़ी की ऊंचाई बहुत है. हाइट बाबा, हाइट. ठीक है. ऊंचा माने हाइट, ऊंचाई माने हाइट. ठीक है. This one is clear? Yes, ma'am. Our संख्या will check what is the, we'll do an exercise based on that. ठीक है. Read the question बाबा. Heading first. एक बार देख लेना. नीचे लिखे वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द चटकर अपनी पुस्तिका में लिखो. पुस्तिका में लिखो. लीची बहुत मीठी. स्वीट. सच. लीची बहुत मीठी है. Which one is भाववाचक संख्या which is में? मीठी. सदा सच बोलो.
बोलो. Bolo is Kriya Baba verb. So So such will be right. Such. yeah, such truth. Oh, okay. ठीक है. Okay. बालक बहुत रो रहा है. रो. रोना is crying. So यहाँ पर रो रहा है. बहुत रो रहा है. रो means ठीक है. crying. Such means truth. Okay. Yeah. Okay. Okay. So what we learned, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संख्या कहते हैं. संख्या के 3 भेद होते हैं. वो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. And the next one, what is व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? विशेष विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. कहते हैं. और जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा